So in previous lecture, we discussed about some terminologies which is utilized in medical microbiology. Now in this video tutorial, we talk about the some pathogens with respect to their studies like classification, what is then morphological characteristics of that organism, cultural characteristics, biochemical characteristics, antigenic structure, viability characteristics, pathogenesis symptoms, laboratory diagnosis, epidemiology, prophylaxis, and chemotherapy. Out of this, most of the character we know that what is morphological character, how the organism is appear morphologically, phenotypically. Cultural characteristics, that means uh, on which kind of the cultures organism that can grow, what kind of the chemical secretions they are secreted by microorganisms. Okay, so let's talk about the first pathogen, is E. coli. The pronunciation of this bacteria is Escherichia coli. This is the classification. In classification of E. coli, first one is the domain, like bacteria or the new classification system is a three kingdom classification system. In which three kingdom there is one bacteria, then one is the eubacteria, then another one is the archaebacteria and the eukarya. And in this eukarya there is again plantae, fungi, and the kingdom Animalia is there. So in three domain classification, that bacteria is the first domain. The kingdom is Eubacteria. Phylum is Proteobacteria. Class is Gamma Proteobacteria. Order is Enterobacteriales. Order, it is given on the basis of their local presence or the localization of this bacteria. This bacteria is generally present in our intestine. Therefore, this order name given as the Enterobacteria. Even the family also given as the Enterobacteriaceae family. Genus is Escherichia and the species is coli. So this is the classification of E. coli. These are some morphological characteristics of E. coli. E. coli is the gram-negative bacteria, rod-shaped bacteria. In this picture, you can see that these are the rod-shaped bacteria which appears pink in color because it is gram-negative bacteria. If you recall first year gram staining, so in this gram staining, we discuss that gram-positive bacteria, they appears coca in shape and violet in color, like the gram-negative bacteria is appears rod shape and pink in color. So here is the gram-negative bacteria. You can see that. Is this cursor visible to you? Hello? Yes, sir. So you can see the cursor where I am pointed to you. So here is a rod-shaped bacteria and pink in color. Then size of this bacteria, it almost 1 to 3 into 0.4 to 0.7 micron meter. It is arranged single or in pairs. Here you can see that this bacteria is present in single, and here if you see the cursor, so here this one bacteria and this is another bacteria that present in pairs. So sometimes it may be present in pairs or sometimes it may be present in single. It is motile bacteria. Most of the gram-negative bacteria, they are motile because they present a Petri trichus flagella. Again, the first year we study about the types of flagella: Amphitrichus flagella, Petritrichus flagella, Monotrichus flagella. Okay, so Petritrichus means they have a flagella all over the body. Petri, that means all over the bacterial cell, the flagella are present. Some strains are non-motile, not necessary. All the gram-negative bacteria, they are, you can say that the motile bacteria. Some of they are non-motile also. Again, they are the normal flora of intestinal tract. What is normal flora? Normal flora, that means they are normally present in our intestine. Therefore, they called as a, their order is called or their family is called as the Enterobacteriaceae family because they present in a intestine. And they are normal flora. They are normally present in our body, and they are helping to us for the
metabolization of lactose. Okay, if the person does not have this normal flora E. coli in their intestinal tract, so they may suffer from the lactose intolerance. That means those persons, they cannot utilize a lactose. Okay, then some strains may be fimbriated. That means you can flagella and the fimbriae, these are the two things which is present on the surface of bacteria. Fimbriae is short structure, flagella is the long structure. Flagella is utilized for the you can say that movement, but fimbriae is not utilized for the movement. Sometimes it is utilized for the movement, but it is a protein which is present in a surface of the bacteria. They are present in both motile and non-motile bacteria. Okay, some strains of E. coli isolated from extra-intestinal infection have a polysaccharide capsule. If the bacteria is isolated from the other than intestine, okay, अगर intestine से उन्हें बाहर, अगर intestine के अलावा से कहीं से isolate किया जाता है, तो हम कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है. ओके, इंटेस्टाइन को छोड़ के. तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर आपको कैप्सूल भी नजर आ सकती है. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि जैसे सेल वॉल होती है, सेल एनवेलप के अंदर तीन चीजें होती है. सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो आपका कैप्सूल होता है, फिर उसके अंदर आपका सेल वॉल होता है, और फिर उसके अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन होता है. तो सभी बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होगी ये जरूरी नहीं होती. कैप्सूल इट इज जनरली made up from the polysaccharide. They are non-spore form. They cannot form a spore if there is an unfavorable condition. So some of the bacteria, they forms a spore. Okay, and that spore, it may be, or that spore they are grow in a favorable condition. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सपोज ऐसी कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, मीडियम सपोज नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, या फिर पीएच ज्यादा है या टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि स्पोर्स बना लेते हैं. अपना जो भी कुछ सेल कंटेंट होता है वो एक जगह पर जमा कर लेते हैं और अपनी सेल के ऊपर एक हार्ड कवरिंग लगा लेते हैं ताकि बाहर की कंडीशंस के उनके ऊपर कुछ अफेक्ट ना हो. और इस तरीके से वो ग्रोथ तो नहीं करते लेकिन अपने आप को बचा के रखते हैं. ठीक है, सभी बैक्टीरिया ये करते, ऐसा नहीं होता. तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये आगे जाकर सपोज फेवरेबल कंडीशन आ गई, यानी कि सपोज वहां पर न्यूट्रिएंट्स आ गए, पीएच फेवरेबल है, टेम्परेचर फेवरेबल है, तो फिर वो स्पोर्स वापस ग्रो करने शुरू हो जाते हैं. लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो स्पोर्स नहीं बना पाते, तो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. ठीक है, दे हैव अ थिन सेल वॉल, ओनली 1 or 2 layers of peptidoglycan. हम सेल वॉल ऑलरेडी पढ़ चुके कि सेल वॉल क्या होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर किस तरीके की सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव के ऊपर किस तरीके होती है. तो ग्राम नेगेटिव के अंदर हमने देखा था कि लिपिड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर ज्यादा होते हैं और पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है. वही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होता है और लिपिड कम होते हैं. ठीक है, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स. फैकल्टेटिव का मतलब कि रहेगा भी ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर वो जी लेते हैं और ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तब भी जी लेते हैं. ठीक है, उन्हें हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं. ठीक है, ग्रोथ अकर्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. सो एक वाइड रेंज है, बट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर उसकी मैक्सिमम ग्रोथ कहीं पर होती है तो वो ग्रोथ कहां पर होती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है. और इसीलिए ई कोलाई को मेसोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है. ठीक है, दैट मींस दे ग्रो इन अ 15 to 45 degree centigrade, and those bacteria which grows in a 15 degree centigrade to 45 degree centigrade, they are known as a mesophilic bacteria. If the bacteria is tolerate to 0 degree to the 15 degree or the 20 degree, so those bacteria are known as the psychrophiles, and the bacteria which grow above the 50 degree or above the 45 degree, they are known as the thermophilic bacteria. Okay, then there are the cultural characteristics. If you see the growth onto a nutrient agar of E. coli, so onto a nutrient agar, we can see that the circular colonies, convex colonies, एक convex होता है यानी कि ऊपर से इस तरीके से कर्सर को अगर आप ठीक से देख रहे होंगे तो ऊपर से convex मतलब ऐसे ऊपर से इधर नीचे फ्लैट सरफेस है और इस तरीके से ऊपर से आता है. कॉन्केव के अंदर इस तरीके से कॉलोनीज आती है. ठीक है, तो और दूसरी स्मॉल कॉलोनीज होती है. मैकोंकिस अगार के ऊपर अगर आप देखोगे, मैकोंकिस अगार का कलर ऑलरेडी रेड होता है,
तो रेड कलर के अगार के ऊपर आपको रोज पिंक कलर के कॉलोनीज वहां पर दिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि मैकोंकिस अगार के ऊपर रोज पिंक कलर के कॉलोनीज आ रहे हैं, दैट मींस दिस बैक्टीरिया आर, you can say that they utilize lactose as their energy sources, वो लैक्टोज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यूरोसिन मिथिलिन ब्लू अगार, इसी को ईएमबी अगार भी कहा जाता है। ईएमबी अगार के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मेटालिक शीन कॉलोनीज वहां पर दिखेंगी। ठीक है, मैं आपको फोटोज भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से कॉलोनीज नजर आती है। देखिए ये न्यूट्रिएंट अगार है, न्यूट्रिएंट अगार के ऊपर स्मॉल कॉलोनीज है, कॉन्वेक्स कॉलोनीज होती है। ठीक है, ये ईएमबी अगार है, ईएमबी अगार के ऊपर मेटालिक शीन, मेटल का कलर जिस तरीके से होता है उस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कलर है। ठीक है, कॉलोनीज का ये देखिए, ये वाली पूरी कॉलोनीज। और मैकोंकिस अगार के ऊपर देखेंगे तो एक्चुअली ये मीडियम थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि लाइट कलर का है, वैसे मैकोंकिस थोड़ा और डार्क कलर का, रेड कलर का होता है, जिसके ऊपर आप ये रोज पिंक कलर की कॉलोनीज देख सकते हैं। तो अगर रोज पिंक कलर की कॉलोनीज आती है, that means this bacteria are utilizing the lactose as their energy source. Okay, then biochemical characteristics, जैसे कि मैंने कहा ई कोलाई है, ये रेड अगार के ऊपर जनरली रेड कॉलोनीज मतलब पिंक कलर की कॉलोनीज वहां पर वो देता है। वो मैनिटॉल को फर्मेंट कर सकता है, मैनिटॉल शुगर को वो यूज कर सकता है, एसिड प्रोडक्शन करता है, अगर उसे ग्लूकोज दिया जाए तो वो एसिड भी प्रोड्यूस करता है और गैस भी प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की टेस्ट इसकी नेगेटिव आती है। About 50% of all strains they ferment sucrose, 50% ई कोलाई के जितनी भी स्ट्रेन है, 250 से ज्यादा स्ट्रेन ई कोलाई की आज नेचर के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें से 50% स्ट्रेन सुक्रोज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सुक्रोज एक डायसैकेराइड है, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में इसको स्टडी किया था, तो सुक्रोज एक डायसैकेराइड है जो कि 2 शुगर यूनिट से बना हुआ है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। इसकी इंडोल टेस्ट होती है वो पॉजिटिव आती है, मिथिल रेड टेस्ट पॉजिटिव आती है, ओगस प्रॉस्पर टेस्ट पॉजिटिव आती है, सिमन्स टेस्ट इसकी सिमन्स सिट्रेट टेस्ट ये नेगेटिव आती है। अब ये जो 4 टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे कि इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट है। ठीक है, इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट में क्या होता है कि हम मीडियम के अंदर जनरली उसको ट्रिप्टोन ब्रॉथ देते हैं ग्रो करने के लिए। अब ट्रिप्टोन ब्रॉथ के अंदर ट्रिप्टोफैन ये अमीनो एसिड होता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने के बाद वो ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है इंडोल के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा होता है, इंडोल प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट पॉजिटिव है। मिथिल रेड टेस्ट ये पीएच इंडिकेटर टेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर हम जनरली ग्लूकोज ब्रॉथ का इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज ब्रॉथ के अंदर ग्लूकोज उसको देते हैं। अगर वो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि ग्लूकोज को लेके वो एसिड प्रोड्यूस करता है, अगर वहां पर वो एसिड प्रोड्यूस करता है तो उसमें हमने मिथिल रेड ये इंडिकेटर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो एसिड प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को लेके तो वो मीडियम जो रेड कलर का होगा वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, और अगर येलो कलर का होता है दैट मींस दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। ओगस प्रॉस्पर टेस्ट ये उसकी नेगेटिव आती है, और सीमेंट सिट्रेट्स भी ये नेगेटिव आते हैं। ठीक है, ये मैं फोटोज आपको दिखाता हूँ उसकी कुछ। देखिए लैक्टोस फर्मेंटेशन, ये लैक्टोस फर्मेंटेशन की टेस्ट है, यहाँ पर आपको रेड कलर की कॉलोनीज नजर आ सकती है, लाइट पिंक कलर की कॉलोनीज भी आपको यहाँ पर नजर आ सकती है। ये शुगर फर्मेंटेशन की टेस्ट है। ठीक है, अब देखिए शुगर फर्मेंटेशन की टेस्ट है, रेड कलर का ब्रॉथ है। ठीक है, ये नेगेटिव टेस्ट है क्योंकि ना तो ये रेड कलर से येलो कलर हुआ है, और दूसरा मैंने कहा था कि ग्लूकोज से वो एसिड और गैस प्रोड्यूस करता है, तो उसमें हम इन्वर्टेड डरहम ट्यूब्स डालते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है, देखिए ये जो 3 ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स नजर आ रही है, इन्हें डरहम ट्यूब्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल वाली ट्यूब है जिसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो इसमें ये ट्यूब्स के अंदर मीडियम पूरा फिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव टेस्ट है क्योंकि इसमें यहाँ पर ना तो मीडियम का कलर रेड हुआ, ना ही इसमें गैस बबल आया हुआ है। दूसरी पॉजिटिव टेस्ट कैसी होती है, देखिए ये रेड कलर का मीडियम येलो कलर का हो चुका है, लेकिन इसने सिर्फ एसिड प्रोड्यूस किया है, गैस प्रोड्यूस नहीं किया है। गैस प्रोड्यूस किया होता तो ये ट्यूब के अंदर एक बबल आ जाता। ठीक है, वही तीसरी ट्यूब आप देखिए जिसके अंदर मीडियम भी येलो कलर का हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले रीजन के अंदर कि गैस प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ से मीडियम नीचे चला गया है और यहाँ गैस फील हो गया है। इसका मतलब ये एसिड भी प्रोड्यूस करता है और गैस भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देन नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये इमविक टेस्ट है। इमविक इसका एक शॉर्ट फुल फॉर्म है, अभी जो हमने पढ़ा, इंडोल टेस्ट, मिथिल रेड टेस्ट, ओगस प्रॉस्पर टेस्ट,
एंड द सीमन सिट्रेट टेस्ट। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं अगर इंडोल प्रोड्यूस किया है तो इसमें हम क्या करते हैं, कोवैक्स रिएजेंट डालते हैं। कोवैक्स रिएजेंट डालने पर ऐसी एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर रेड कलर की रिंग फॉर्म होती है तो कोवैक्स रिएजेंट क्या करता है, जो इंडोल प्रेजेंट होता है वो टेस्ट के वो ट्यूब के अंदर, तो इंडोल के साथ में रिएक्ट कर कर एक पिंक कलर की या रेड कलर की रिंग वो देता है, तो इसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर मिथिल रेड, लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक हो गया कि अगर मिथिल रेड है तो मिथिल रेड ये एसिडिक कंडीशन के अंदर पॉजिटिव होता है। तो अगर ये एसिड प्रोड्यूस करता है तो इसका कलर रेड ही रह जाएगा, लेकिन अगर एसिड प्रोड्यूस नहीं किया और बेस प्रोड्यूस किया तो भी येलो हो जाएगा। ये ओगस प्रोस्कर टेस्ट है, ठीक है, जो कि इसकी नेगेटिव आती है, और ये सिट्रेट टेस्ट है जो इसकी नेगेटिव आती है। ये नॉर्मल कलर है, अगर वो ग्रो होता तो इनके कलर बदल जाते हैं। चलिए, यहाँ पर भी वोगस प्रोस्कर टेस्ट के अंदर अल्फा नैप्थोल हम डालते हैं। अल्फा नैप्थोल डालने के बाद यहाँ पर एक रिंग आती है सेम पिंक कलर की, अगर वो आती है तो इसका मतलब वोगस प्रोस्कर टेस्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर रिंग कोई भी नहीं आई, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही इंडोल के अंदर, ऐसी वोगस प्रोस्कर के अंदर नहीं आई हुई है, इसका मतलब कि ये टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। इसे हम प्रैक्टिकल में भी देखने वाले हैं जब हमारे नॉर्मल प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। देन एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ई कोलाई। ठीक है, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के अंदर इसके जो मोस्ट ऑफ द एंटीजन है वो तो लिपोपॉलीसैकेराइड है, ये मेजर इसका सेल वॉल एंटीजन है। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड मैंने आपको कहा था जो पीछे वाला रीजन होता है, तो इसमें लिपिड और पॉलीसैकेराइड दो चीजें, लिपिड ये थोड़े से है लेकिन पॉलीसैकेराइड के अमाउंट बहुत ज्यादा है। इसके पास चार अलग अलग तरीके के एंटीजन होते हैं, एच एंटीजन, ओ एंटीजन, के एंटीजन एंड एफ एंटीजन। आप यहाँ पर फिगर के अंदर देख सकते हैं। देखिए, एच एंटीजन की पोजीशन ये फ्लैजेला के अंदर होती है, वो एंटीजन ये आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसीलिए इसे लिपोपॉलीसैकेराइड का एलपीएस कहा गया है, ओ की। ठीक है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन ये जनरली फॉर कैप्सूल एंटीजन, ये आउटर मोस्ट पॉलीसैकेराइड जो होती है इसकी कैप्सूल बनती है, तो ये के एंटीजन हो गया। और एक थ्री, जैसे कि ने कहा कि ये सेल सरफेस के ऊपर एक फ्लैजेला जैसे लेकिन बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें फिमरी कहा जाता है, उसे एफ एंटीजन कहा जाता है। एंड दे आल्सो प्रोड्यूस सम एक्सोटॉक्सिन। अब एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, ये जितने भी टॉक्सिन्स है जो इसके सेल के ऊपर प्रेजेंट है, ये इसके खुद के टॉक्सिन्स है, इसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, तो इन्हें एंडोटॉक्सिन्स कहा जाता है। और जो टॉक्सिन सेल के बाहर सीक्रेट किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। तो अगर ये ऐसा टॉक्सिन ये सेल के बाहर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। एक एक एंटीजन के बारे में हम देखते हैं। पहले फ्लैजेलर एंटीजन। फ्लैजेलर एंटीजन जो कि हमने देखा फ्लैजेला के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड इट इज मेड अप फ्रॉम द फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेला ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन जो है ये हीट और अल्कोहल लेबल है, हीट और अल्कोहल का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं होता, ये फ्लैजेला के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जीनस स्पेसिफिक होता है, जैसे जैसे जीनस बदलेगा तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। ठीक है, ये मोनोफेजिक है, एक ही फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट इसके 75 डिफरेंट एंटीजन अब तक रिकॉग्नाइज है, एच एंटीजन, फ्लैजेलर एंटीजन के। ठीक है, देन अनदर एंटीजन इज द ओ एंटीजन। ओ एंटीजन व्हिच कंटेन्स मेनी रिपीट्स ऑफ एन ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स is part of lipopolysaccharide present in the outer membrane of gram negative bacteria। हमने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो ओ एंटीजन होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। अगेन ये हीट स्टेबल है, रेजिस्टेंस अप टू 2 आवर्स 30 मिनट्स। अगर आप इसको 2 घंटे 30 मिनट तक बॉईल करेंगे तब भी ये उसको क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल। इंटीग्रल पार्ट मतलब जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, इसे हम इंटीग्रल कहते हैं, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, it contributes major antigenic variability to the cell surface, and on the surface of this variation E. coli has been divided into 166 O serogroups। सिर्फ ये अकेले एंटीजन की वजह से, ओ एंटीजन की वजह से ई कोलाई के कितने सीरोग्रुप्स आते हैं, 166। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना वेरिएशन है। ठीक है, देन कोर रीजन ऑफ फॉस्फोराइलेटेड नॉन रिपीटेटिंग ओलिगोसैकेराइड्स। कोर रीजन के अंदर फॉस्फोराइलेशन हुआ रहता है बहुत सारी ओलिगोसैकेराइड के ऊपर, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये एक लिपोपॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड के ऊपर कुछ शुगर्स ऐसे होती है जिनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया जाता है, और जब ये प्रोसेस को, जब किसी शुगर के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक है, सो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज रेफर्ड टू एज फॉस्फोराइलेशन।
देन द ओ एंटीजन इज इनकोडेड बाय द RFB जीन। वो एंटीजन फिर कौन बनाता है, तो उसके जीनोम के अंदर जो RFB जीन क्लस्टर होता है वो बनाता है, ठीक है। ROL जीन इट एनकोड्स द रेगुलर ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड। तो दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक RFB जीन रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा ROL जीन ये रिस्पॉन्सिबल है ये ओ एंटीजन को बनाने के लिए। देन द कैप्सुलर एंटीजन, के एंटीजन, द एसिडिक कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड, okay, which is also known as the CPS, that is capsular polysaccharide, is a thick, ये बहुत थिक होता है, म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज it is a layer of polysaccharide, and we know that because we already study about the carbohydrate, they are the hydrates of carbon, that means they are remains, or we can say they tends to remain in their hydrated form। कोई भी शुगर हो वो एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर होता है उसे क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और आप जानते हैं कि शुगर के अंदर अगर आप पानी डाल देते हैं तो वो एक स्टिकी सब्सटेंस बनाता है, एक स्टिकीनेस उसके अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर की साइड में पॉलीसैकेराइड है, तो वो पॉलीसैकेराइड अगेन इट इज शुगर, तो वो एटमॉस्फेयर में से वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग के अंदर एक स्टिकी लेयर बन जाता है, एक म्यूकस लाइक लेयर बन जाता है, जो कि काफी थिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, और इसी को हम कैप्सुलर एंटीजन भी बोलते हैं। ये भी हीट लेवल है, ये हीट को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अगर काफी ज्यादा देर तक अगर इसे बॉईल किया जाता है तो ये के एंटीजन रिमूव भी हो जाता है। इसका फायदा क्या है बैक्टीरिया को, इसका फायदा ये इट इनहिबिट्स द फैगोसाइटोसिस। अब ये स्टिकी होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग सेल्स होती है, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, ठीक है। तो ये सेल्स क्या करती है, उसे एंगल्फ करने की कोशिश करती है। एंगल्फ करने का मतलब वो उसे निगलने की कोशिश करती है। निगलने के लिए पहले उसको पकड़ना तो चाहिए, तो पकड़ने के लिए जब वो उसे पकड़ने जाती है तो वो फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस है। अब ये सेम जो है ना, ये आपको स्नेक और फ्रॉग के केस में भी देखने को मिलता है। तो कुछ फ्रॉग्स ऐसे हैं जो अपने स्किन के ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, ताकि जब उसे स्नेक उसे पकड़ने की कोशिश करे तो वो फ्रॉग वहां से फिसल जाता है। तो सेम कंडीशन यहीं पर है कि बैक्टीरिया एक स्टिकी सब्सटेंस को जिसको सीक्रेट किया हुआ है, तो जब कभी भी हमारी बॉडी के सेल्स पे पकड़ने जाती है तो उसमें से फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसको उसको किल नहीं किया जाता, और अगर वो किल नहीं करेगा तो इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सम काइंड ऑफ द डिसीजेस। ओके, सो इट इनहिबिट्स द phagocytosis। Then the last one antigen is a fibrillar antigens which is present on to the फिब्री। ये फिब्री के अंदर प्रेजेंट होता है, एक फिलामेंटस पॉलीमेरिक सरफेस प्रोटीन है, ये एक एंटेरोटॉक्सिजेनिक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ये चारों के चारों एंटेरोटॉक्सिन्स है, ठीक है, क्योंकि ये सेल के ऊपर या सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे इन सभी टॉक्सिन्स को एंडोटॉक्सिन्स या एंट्रोटॉक्सिन्स भी कहा जाता है। हीट लेवल प्रोटीन है, ये हीट को टॉलरेट कर सकता है, ये फिब्री के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके K88 और K99 एंटीजेंस है, ये दो तरीके के एंटीजेंस उसके ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इज द पैथोजेनिसिटी। Pathogenic E. coli have been grouped into a broad class or pathotypes based on the mechanism by which they cause the disease। अलग अलग जो पैथोजेनिक इकोला है वो उनके प्रोटोटाइप्स के अंदर डिवाइड किए गए, जैसे कि ETSE है, STSE है, EPSE है, EXPSE है। इनके फुल फॉर्म्स यहाँ पर दिखाई आपको दिख रहे हैं। एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोला, शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोला, then the enteropathogenic E. coli and the extra intestinal E. coli, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग इसके पैथोटाइप्स है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किया गया है उनके डिसीज कॉजिंग मैकेनिज्म के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया contaminating the environment are ingested by the susceptible animals and enter the intestinal tract। जनरली क्या होता है कि ये ई कोलाई का कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, कंटेमिनेटेड फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर या ऐसा कंटेमिनेटेड फूड हम अगर खा लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो एंटर करता है, और एंटर करने के बाद वो कहाँ पर जाता है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जाता है। जैसे वो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जाता है, सो इट पोजेसेस द फिमरी। इसके पास फिमरी है, तो ये फिमरी का फंक्शन क्या है कि वो हमारे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं इनके ऊपर अधेर करता है by utilizing our some receptors। you can see that
this bacteria possesses fimbrial adhesions which mediate adherence to specific receptor on the intestinal epithelial cells. हमारे intestinal epithelial cells के ऊपर कुछ receptors होते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स के ऊपर जो बैक्टीरिया का फिम्बरी होता है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से अब बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन पर अधेर हो गया। जैसे ही वो अधेर हो जाता है तो वो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर देता है, मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। रिजल्टिंग बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन इज फाउंड मोस्टली ऑन द जेजुनल। हम जानते हैं इंटेस्टाइन के भी फिर 3 टाइप्स आते हैं, एक ड्यूडेनम होता है, एक जेजुनम होता है और एक इलियम होता है, ठीक है। सो जेजुनल और इलियल ट्रैक्ट के अंदर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। द अधेरेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंट्रोटॉक्सिन। जैसे ही वो क्या करता है, वहां पर कॉलोनाइज हो जाते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो अब वो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो इंटेस्टाइन के टॉक्सिन है, जिनकी वजह से क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस इनटू द इंटेस्टिनल लूमेन। तो इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल जो होते हैं, तो ये टॉक्सिन के रिस्पॉन्स के अंदर वो वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को, वो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, ये इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ये कहां पर आने शुरू हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के लूमेन के अंदर। अब जनरली जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आएंगे तो वाटर ये सॉल्ट के ग्रेडियंट को फॉलो करता है। मतलब अब देखा जाएगा कि सॉल्ट कहां पर ज्यादा है, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर ज्यादा है या फिर ये आपके इंटेस्टाइन की लूमेन के अंदर ज्यादा है। तो टॉक्सिन की वजह से ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट लूमेन के अंदर आ गए, तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट को फॉलो करेगा और वाटर भी कहाँ आ जाएगा, ये लूमेन के अंदर आ जाएगा। जैसे वो लूमेन के अंदर आ जाएगा तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स ये इंटेस्टाइन की लूमेन के अंदर आने के बाद ये इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन से ये रेक्टम के अंदर आएंगे और रेक्टम से ये बाहर सीधा निकल आएंगे, जिसकी वजह से अब वाटर का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से अब वाटरी डायरिया हो सकता है, ठीक है, और जनरली होता है कि इट लीड्स टू द वाटरी डायरिया। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा वाटर अगर बाहर आ रहा है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाए बॉडी में से तो डिहाइड्रेशन की वजह से वो एनिमल की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज इन द पैथोजेनेसिस ऑफ ई कोलाई। Here you can say that the mechanism of infection of EPAC का एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर EPAC का फुल फॉर्म क्या है, एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई। तो एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई का हमने एक एग्जांपल लिया है। तो पहले स्टेप से लेते हैं। सपोज ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या किया, फूड से हो या वाटर से हो, अब ई कोलाई का इंजेक्शन कर लिया, मतलब उसने खा लिया। जैसे ही वो खा लिया तो दूसरा क्या होगा, ये इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो कॉलोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देंगे, ये वाले रीजन के अंदर, जेजुनम और इलियम के रीजन के अंदर ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब वो ग्रो हो जाएंगे तब वो, अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन वाले जो है ये रिसेप्टर्स है, ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया जो दिखाई येलो कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो फिब्री बैक्टीरिया के हैं, ठीक है, वो फिब्री रिसेप्टर्स को बाइंड है। जैसे वो बाइंड हो जाएंगे, रिसेप्टर्स को फिम्बरी बाइंड हो जाएंगे, अधेर कर जाएंगे, तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं रेड वाले जो है ये टॉक्सिन है। जैसे ही टॉक्सिन ये अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो ये इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल है, तो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल ये टॉक्सिन के रिस्पॉन्ड में क्या करेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर डालेगी अंदर से। आप अगर एरो देख पा रहे हैं मेरा, तो एरो की पोजीशन में आपको दिखा रहा हूं कि ये सेल में जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बाहर जब आएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जब बाहर ज्यादा हो जाएंगे तो उसको फॉलो करते करते कौन आ जाएगा, वाटर भी बाहर आना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज अंडर मैकेनिज्म ऑफ इंफेक्शन ऑफ ईपीएससी, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, अगर सपोज आपको ई कोलाई का इंफेक्शन होता है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकता है, पेट दर्द जिसे हम कहते हैं, सडन और सीवर वाटरी डायरिया, जैसे कि अभी भी हमने कहा, क्योंकि वाटर ही बाहर आ रहा है तो वाटरी डायरिया हो सकता है, ब्लडी स्टूल हो सकता है, स्टूल के अंदर ब्लड भी आ सकता है, वाटर के साथ साथ में ब्लड भी वहां पर हो सकता है, गैस हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगी, वोमिटिंग हो सकती है, फटीगनेस आएगा, फीवर आ सकता है, ठीक है। ये इसके नॉर्मल सिम्टम्स है, ठीक है। कुछ और भी सिम्टम्स है, सीवियर सिम्टम्स है, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा इंफेक्शन स्प्रेड हो जाता है तो यूरिन के अंदर भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा,
कम डिहाइड्रेशन क्लियर सिम्टम्स। लैबोरेटरी डायग्नोसिस को फिर डायग्नोस कैसे किया जाए, ठीक है। डायग्नोस करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द ई कोलाई दे जनरली हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, यस सर। ओके, सो मोस्ट ऑफ द ई कोलाई ब्रेक हो रहा है क्या वॉल्यूम? No, now it is clear, sir. Okay, okay. Now, so get E. coli. Most of times, it's cause a urinary tract infection. In short, it is called as UTI. Most of the E. coli they generally cause a UTI infections, urinary tract infection. So अगर आपको इसका डायग्नोसिस करना है कि अभी हमें नहीं पता ना कौन सा ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो हम फिर जनरली क्या लेंगे, सैंपल्स लेंगे। तो फिर इसके लिए सैंपल्स क्या क्या हो सकते हैं, स्पेसिमेन क्या क्या हो सकते हैं? तो ब्लड एक हो सकता है, यूरिन एक हो सकता है, स्टूल सैंपल एक हो सकता है। तो ये तीन क्या है उसके मेजर स्पेसिमेंस है। तो अगर ये आपको लगता है कि इट मे बी दिस इन्फेक्शन ये ई कोलाई का है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तीन जगह के सैंपल्स ले सकते हैं। या फिर जनरली यूटीआई इन्फेक्शंस को डायग्नोस करने के लिए सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया, ये जनरली क्वांटिटेटिव टेक्निक ये यूज की जाती है, विच इज डेवलप्ड बाय द कैस। कुछ सेमी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी है, ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, हर एक ई कोलाई, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिविटी शो करता है। जैसे कि हम देखेंगे आगे, अलग अलग बैक्टीरिया, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन को सेंसिटिव होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन किसका हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन को सेंसिटिव होते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया का हो सकता है, ठीक है। देन प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन होता है बेसिकली, कि आप अगर आप नहीं चाहते कि आपको इन्फेक्शन हो तो क्या क्या करना है। तो जब कभी भी हम बाथरूम होकर आते हैं, ठीक है, या फिर खाना खाने से पहले या खाना बनाने से पहले हाथ को ठीक तरीके से धो लेना चाहिए, ठीक है। देन वॉश हैंड्स आफ्टर कांटेक्ट विद एनिमल, अगर आप किसी एनिमल के साथ खेल रहे थे या किसी एनिमल के कांटेक्ट के अंदर आए हुए तो अच्छे तरीके से हाथ धो लेने चाहिए। मीट जो होता है ये अच्छे तरीके से कुक कर लेना चाहिए, मटन हो गया, चिकन हो गया, अगर आप घर पर लाते हैं, ठीक है, तो वो एनिमल ने क्या क्या खाया हुआ है, कहाँ कहाँ का पानी पिया हुआ है, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द ई कोलाई के जो भी एंटीजेंस है ये हीट लबाइल है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उसको अच्छी तरीके से कुक करना है, ठीक है। तो जनरली अगर आप मीट को कुक करते हैं, जैसे कि मटन हो गया, ठीक है, तो मटन को कुक करने के लिए 100 से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि फिर वहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रॉ मिल्क खाने से अवॉइड करें। रॉ मिल्क मतलब जैसे आप गए एक किसी फार्मर से मिल्क लेके आए और आपने वो सीधा पी लिया, तो ऐसा मिल्क ना लीजिए, क्योंकि वो एनिमल अगेन क्या क्या खाए, कैसा पानी पिया हुआ है हम नहीं जानते, तो उसके मिल्क के अंदर भी वो बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो मिल्क को पहले पास्चराइज कर ले, पास्चराइज मतलब गर्म कर ले अच्छे से, और फिर उसके बाद अगर मिल्क लेते तो अच्छी बात है। अनपास्चराइज, पास्चराइज मतलब वही बात होगी कि पास्चराइजेशन के बिना कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। स्विमिंग के लिए कहीं पर जाते हैं आप, कहीं पर लेक के अंदर गए या कहीं पर बारिश के मौसम के अंदर कहीं पर खेलने गए, काफी सारे लोग पानी के अंदर खेल रहे हैं, आप स्विम कर रहे हैं, तो ऐसे पानी को स्वलो करना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि आप नहीं जानते कौन कौन से लोग पानी के अंदर क्या क्या करते हैं, ठीक है। ज्यादा पानी होगा तो किसी ने यूरिनेट भी कर दिया तो पता नहीं चलेगा, तो पानी वो वाटर के अंदर यूरिन आ जाएगा, और ऐसे पानी को अगर आप सॉलो करते तो यूरिन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो आप सॉलो कर लेंगे, और उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन आप वहां पर कर सकते हैं। कीमोथेरेपी क्या है इसके लिए, तो अलग अलग जनरली ये किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ये डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन का सीवियरनेस क्या है, ठीक है, जिसके लिए ट्राइमोफ्रीन यूज की जाती है, सल्फामेथोक्साजोल यूज किया जाता है, अमीनोग्लाइकोसाइड यूज किए जाते हैं, सेफालोस्पोरिन ये एक एंटीबायोटिक है, ये यूज की जाती है। And most of the beta-lactam antibiotics they are utilized in a E. coli infection. Beta-lactam antibiotics के अंदर streptomycin है, penicillin है, ये beta-lactam antibiotics है, ठीक है। तो इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है।